Hello, this side Jay sir here. So welcome to all of you student. So in today's session, we are going to learn the very most important chapter, which is a binomial theorem. Binomial theorem, right? Uh, Let me tell you students, what's the application of this chapter before proceeding to the chapter? Binomial theorem, right? Up to 10 standard, you learn such like that x plus y is whole square, right? Which is like that x square plus 2xy plus y square, right? Make sure also you learn x plus y is whole cube, okay? Such like that x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube, okay? Now my question is like that x plus y raised to 10. Give me the answer. Make sure that your mind will be stuck. Okay. So don't worry, guys. Today we are gathered over here to learn how we can expand these kind of binomial terms, right? Having index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to n. कोई भी index हो x plus y raised to n. Okay. So up till नाउ मतलब 10 स्टैंडर्ड तक आपने जस्ट यही पढ़ा है x प्लस वाई का स्क्वायर, राइट? x प्लस वाई का क्यूब, बट x प्लस वाई की 4 पावर, x प्लस वाई की 5 पावर, x प्लस वाई की 6, 7, 8 कोई भी पावर दी जाए तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, राइट? सो इसके लिए पहले तो एक पास्कल्स ट्रायंगल था। बेसिकली फर्स्ट थियरी है इस चैप्टर की हमारे लिए पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, तो पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? सच लाइक दैट लेट मी राइट इट्स सच अमेजिंग। वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन वन फोर सिक्स फोर वन, राइट? Have you observed any kind of pattern over here, right? It's a Pascal triangle. It was the first mathematician who had approached to expand the x plus y raised to 1, raised to 2, raised to 3, raised to 4, raised to 5, raised to n. Right? So what about this? Let me explain. Observe this, how these two come. इन दोनों का addition that produce to itself. Right? Again, how these three produce? Okay, how these three produce? 2 and 1 addition, right? How these 4 produce? You know that over here the triangle
is formed, right? That's why Pascal's triangle is name given to this pattern. How these 6 form? 3 plus 3. Okay. How these 4 form? 3 plus 1. Right? So this is the Pascal triangle. और ये सब क्या है? These are the coefficient of each and every term of the expansion. Such like that, if I say x plus y raised to 1, right? X plus y raised to 1, it means that x plus y ही हुआ, right? तो यहाँ आगे coefficient क्या है? These are the coefficient. Okay. Now I can say x plus y is whole square. Already we know that x square plus 2xy plus y square, right? Same like that, देखो 1, 2 and 1, right? These are the coefficient. Okay. Again, x plus y is whole cube. I can write x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. Again, you can observe this is a 1, 3, 3, 1. These are the coefficient. Okay. So Pascal's triangles give us the coefficient of each and every term of the expansion of the binomial, right? Whatever index it is, कोई भी इंडेक्स हो, हमें वो always क्या देगा? ये coefficient देगा. Then what about the x, y? These are the variables. Yeah. What we can say? One more thing you have to observe such like that. हर एक टर्म, यहाँ देखो इंडेक्स हमारी 1 है, राइट? यहाँ इंडेक्स 2 है, यहाँ इंडेक्स 3 है. तो यहाँ पे देखो हर एक टर्म का सम ऑफ इंडाइसिस जो है वो सेम ही रहेगा. यहाँ 2 है ना, तो हर एक टर्म में सम ऑफ द इंडाइसिस 2 ही रहेगा. यहाँ देखो 2 है, राइट? यहाँ पे भी देखो 1 and 1, तो सम ऑफ इंडाइसिस अगेन 2. यहाँ पे भी 2. अब x प्लस वाई इज होल क्यूब. ओके. तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ इंडेक्स 3 है, तो हर एक टर्म में सम ऑफ इंडाइसिस विल बी 3 ओनली. तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 2 and 1 3, 2 and 1 3, यहाँ पे भी 3 itself है. ओके. एंड वन मोर थिंग, जो भी हमारा वेरिएबल है x और y, दो टर्म है, राइट? तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसकी सक्सेसिव टर्म हम देखें तो पावर जो है, पावर, राइट, वो डिक्रीजिंग होती जाएगी. यहाँ पे भी देखो, यहाँ 2 है, राइट? तो पहला टर्म x है, तो उसकी पावर क्या है? यहाँ पे 2 है. उसके बाद 1 डिक्रीज हो गई, अगेन यहाँ पे 0 हो गई. आई कैन राइट x रेस टू 0 ऑल्सो. ओके. और सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म y, सक्सेसिव टर्म में हम जाएंगे तो y की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी. हम यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे y रेस टू 0 होगा, y raised to 1, y raised to 2. Got it? So these are the basic fundamental of Pascal's triangle. In examination, they will ask you such like that. Let me write one question. X plus y raised to 5. Okay, x plus y raised to 5. पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, once we expand this, how many total number of terms I will get. The Pascal says that each and every expansion में जितनी भी इंडेक्स होगी ना, राइट, उसमें +1. अगर देखो x plus y रेस टू n है, राइट? तो आफ्टर
doing the expansion of these x plus y raised to n, I will get total number of term are n plus वन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस वन. जैसे कि चलो प्रीवियस स्लाइड में ही देखो, यहाँ पे भी देखो, टू पावर थी ना, राइट? तो कितने टर्म्स है हमारे पास? थ्री टर्म्स आए. यहाँ पे भी थ्री पावर थी, इंडेक्स थ्री थी, तो मेरे पास कितने मिलने चाहिए? n प्लस वन. दैट्स आई एम गेटिंग वन टू थ्री एंड फोर. ओके, सो फॉर these x plus y raised to 5, यानी कि I am getting six terms after expanding this x plus y raised to 5. Okay, so for that coefficient क्या होगा? coefficient देखो यहाँ पे. ओके, तो x प्लस वाई रेस टू थ्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये होगा x प्लस वाई रेस टू फोर. बट आई वॉन्ट x प्लस वाई रेस टू फाइव. ओके, तो कोएफिशिएंट मुझे मिलना चाहिए. तो कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? दिस गिव्स x प्लस वाई रेस टू थ्री कोएफिशिएंट, राइट? दिस गिव्स x प्लस वाई रेस टू फोर. अब मुझे चाहिए x प्लस वाई रेस टू फाइव, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वन, वन प्लस फोर फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव, अगेन वन. Okay, so these are the required coefficient for x plus y raised to 5 power. Okay, 1 5 10 10 5 1. याद रखना 1 5 10 and 10 5 1. 1 5 10 10 5 1. These are the coefficient of these six terms. अब x y x y x y x y x y x y. ओके, बीच में प्लस की साइन कर दो सब जगह. ओके, अब हमने क्या बताया था आपको? पहला जो टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, उसके सक्सेसिव टर्म, राइट, उसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी. तो पहले हम फाइव लिखेंगे, राइट? उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? फोर, थ्री, टू, वन एंड जीरो, राइट? और सेकेंड टर्म जो होगा y, उसके सक्सेसिव टर्म्स में पावर इंक्रीज होती जाएगी. वो शुरू कहां से करना है? इंडेक्स फोर से स्टार्ट कर, जीरो से स्टार्ट करना है, सॉरी. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी टर्म में सम ऑफ इंडाइसिस फाइव ही रहनी चाहिए. यहाँ पे देखो, फाइव प्लस जीरो फाइव, फोर प्लस वन फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस फोर फाइव, जीरो प्लस फाइव फाइव. तो दीज आर द expansion of x plus y raised to 5. So can I write x raised to 5? Because one coefficient we can ignore also. Y raised to 0 always 1, plus 5 x raised to 4 y, plus 10 x cube y square, plus 10 x square y cube, plus 5 x raised to 1 y raised to 4, plus वन लिखो या ना लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, x raised to 0 always 1, y raised to 5. This is the expansion of x plus y raised to 5. So in examinations,
they can ask whatever index will be x plus y raised to 6, x plus y raised to 7, but make sure that अगर उन लोगों ने ये पूछा x plus y raised to 20, right, then what's your approach? Make sure that आपको ये पूरा पास्कल ट्रायंगल जो है वो बनाना पड़ेगा. That's the main problem. Okay. सो चलो, उसने एक्स प्लस वाई रेस 25 पूछा, तो हमें ये सब सारे ट्रायंगल फॉर्म करके हमें कोएफिशिएंट जो है बनाने पड़ेंगे, राइट. तो वो टू मच इरिटेटेड वर्क हो जाएगा ना, राइट. सो उसके लिए बाइनोमल भाई साहब आए. कौन? बाइनोमल नाम के मैथमेटिशियन आए, राइट. उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, ओके, कि पास्कल ने ये सब तो सही बनाया है, चलो हम अपना अपना क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, right? तो उसने क्या सोचा, आप जानते हो ना, एनसीआर आप जानते हो, राइट. एनसीआर, एनसीआर का कंसेप्ट जो है वो बाइनोमियल ने यहां लगा दिया. कैसे? जैसे कि 1C0, 1C1, राइट. तो 1C0 भी 1 होता है, 1C1 भी 1 होता है, राइट. अगेन 2C1, सॉरी 2C0, 2C1, 2C2, राइट. अगेन 3C0, 3C1, 3C2, 3C3. देखो, 3C0 करके देख लो, 3C1 करके देख लो, राइट. इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट. तो ये तो बहुत इजी हो गया, राइट. तो दैट्स व्हाई बाइनोमियल थ्योरम जो इंट्रोड्यूस हुई, राइट. सो आप कुछ भी हो, राइट, तो बाइनोमियल थ्योरम का आप ऐसे यूज कर सकते हो. जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे आपको बताया ना, एक्स प्लस वाई रेस टू 5 हमने किया, राइट. तो एक्स प्लस वाई रेस टू 5, तो हम बाइनोमियल से कैसे इसको लिख सकते हैं? तो पहले तो हमें इसे लिखना है 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. ओके. अब जैसे ही हमने लिखा था वही वैसे ही एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई. ओके. अब पहला टर्म है, उसकी सक्सेसिव टर्म की पावर जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. यहाँ पे चलो मैंने 5 लिखा है, यहाँ 4, 3, 2, 1, 0. अब सेकेंड टर्म जो है, उसके सक्सेसिव टर्म अगर हम लिखे तो उसकी पावर क्या होगी? बढ़ती जाएगी, राइट. जीरो से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके. तो दिस इज द expansion of x plus y raised to 5 using binomial theorem. सर 5C0, 5C1, 5NC, 5C2, 5C3 ये क्या है? तो हम जानते हैं एनसीआर की फॉर्मूला, हम जानते हैं ना, एनसीआर. एनसीआर की फॉर्मूला क्या होती है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट. तो चलो, आपको 5C2 है, 5C2, तो 5C2 आप कैसे निकालोगे? जस्ट सिंपल सा है, राइट. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल.
5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कट इट आउट, राइट। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो जैसे भी कोई भी 5C2, 10C2, 10C3, राइट, कुछ भी हो, आपको एनसीआर का यूज करके लिखना है। तो अब मेक श्योर दैट आपको ये लेक्चर के बाद पता चल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम जो है वो क्या है। बाइनोमियल थ्योरम जो है उसकी एप्लीकेशन ये है कि हमें कोई भी दिया जाए बाइनोमियल एक्स प्लस वाई, उसकी कुछ भी इंडेक्स दी जाए, तो उसको हम बड़ी आसानी से, राइट, एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। और पहला हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, पास्कल, राइट, पास्कल्स ट्रायंगल, राइट। पास्कल ट्रायंगल जो है वो इसके बेस में है। ओके, और पास्कल में थोड़ा सा इनोवेशन करके हम क्या लेकर आए, यस, बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका एक्सपेंशन किया। ओके, सो चलो आज के होमवर्क में आप अपने ये ट्राई करना, एक्स प्लस वाई रेस टू 8। ओके, एक्स प्लस वाई रेस टू 8 का एक्सपेंशन करना। यू कैन ऑल्सो do the expansion using Pascal's triangle and binomial theorem also. But in binomial theorem, you have to use NCR concept. Okay. So I hope you will get all the concept clear in this lecture. Okay. Have a nice time. Bye.